Admit all. Everybody will open up the camera, and you should have the laptop in front of you. We're gonna complete yesterday's code and discuss lots of things today as well. Okay, we got 22 guys here, so maybe we wait 2 3 minutes more, and we gotta go. Javed Qureshi, admit all. Hurmat Zahra. Okay, we're adding people. Everyone should put up their cameras on. That will be nice to go. Hmm. That's good. Let's start and then people may add up. ये मुझे लगा के हैं कि नहीं? So we actually complete yesterday's code ना. हम कहाँ पहुँचे थे इसमें? Let me share my screen. Entire screen second. Say share it. Okay. And I need to get it actually to have that effect, right? I need to get this window here on this screen. Otherwise it will have that effect. Okay, this is the yesterday's code. Muzaffar has come up. Admit. Anyways, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Hide this one. A little bit more. Some hiss, some sound coming up from somewhere. Somebody's mic is open, and Rahi Bisma, I think, and Yasir Rasul. Just mute yourself for a while because some hiss sound is coming from somewhere. Server. Admit. Okay, now that his sound just stopped. Okay, let's get started with the code we did yesterday, and we continue with this thing. Let me see, what is my VS Code somewhere? It's not going, it's actually not maximized. Okay, here we are with the VS Code. This is what we did yesterday, that we had, what is the index file? This is the index file, and we have here absolutely the body part. Okay, in the body we got the main class, and we got the image, and we got the p tag, and we got a button. We actually styled them up here in here. We styled the star, that means to everybody. We styled the body. We styled the main container, then main container image. We styled that. We styled the main container h1. Okay, and we style the main container paragraph tag. We style the button and button hover. Maybe we add up more things here to the button, because I'm seeing a very plain button, right? So I want to make it hover. Also we set the green color. So if you have to, if we want to make the edges a little round, so what should I do? Anyone tell me? To the btn. Border radius. Yeah, border radius. Border. Absolutely, border radius. So border radius, say maybe 20 pixels. Let's see how it goes. Okay, it's now a little round. We can also have what is called as a box shadow. We can have also what? Box shadow. It gives a little bit a nice thing. The first thing we do is the shadow on the bottom of the whatever the box you have. Any box, any div, any section, any article, you can put up a shadow on the box. The first, and look at the pen. It's here. I had one note somewhere opened up. Yeah. The first in the box shadow is, let me maximize this also and get the draw here, the marker, the red one. So I am saying that we got some box. It could be anything. It could be a button. It could be any box or div or whatever. Right now we have this button. I want to put a shadow. Shadow means that it's got to be some shadow on a down.
okay, and from this side maybe. So this position is the x position and a y position. The first, when you say box shadow, the first is how much of the x position you will have. Then second argument, we don't have a commas, that y position we have. Then these are two things, the x and y's, the x's and the y's, how much y and how much x shadow. And then we have the blur, how much blur I want to have. Do I want to have a solid color, or have a blur to it? Okay. Then we have the how much spread, how much it is gonna spread. So there is 1, 2, 3, 4 things, and after that we can specify some color. So either you specify some solid color like white, black, brown, whatever you like, or red, or you can use the RGB. RGB is the red, green, blue combination. That is, we have, because maximum we can have 0 to 255 combinations. So red can go from 0 to up to 255. There are different variations of red. थोड़ा faded red, मतलब जब 255 लिखेंगे तो पक्का पूरा आ जाएगा. इस तरह green means, G means green and B means blue. So they all can move from 0 to 255. Okay, so you can have a choices between 0 to 255 or all of them. If I say, like, for example, RGB 000, it will be black, because that means you are not putting up any color, so that means that is black. If you say full color to everything, you are mixing everything in a full concentration, it will be white. If you say 255, 255 and 255, that means this is R, this is G, and this is B, so this is gonna be the white. And in between you can choose any color. You can have the millions of colors with a combination of these, right? But we can also have, instead of RGB, we can have RGBA. Okay, the alpha on the last. That's the fourth argument. Say for example I use some color, say I use 000 for RGB, that's black. Then I am saying how much transparent it's gonna be. Later on we will see, if we make the glass morphism and we want transparent cards so that the जो पीछे वाला है वो दिखे, then 1 here means the opaque, and we can have from 0.1, 0.2 or something, which means a transparent. So let's try to see what I'm trying to say. That if I have a box shadow, the first thing will be how much box shadow on the X. Say for example, I give too much of right now. Let me give firstly simple, 20 pixel. 20 pixel to the, that's the X. Then maybe I will make 20 pixel as a Y. Okay, I will not do this much, but I'm just trying to show you first what box shadow is. This is the X position and Y position, and then what I said, that I need how much blur you have. Maybe I will say 20 pixel to the blur also. Okay, and then how much will it spread, how much Y width, how much this blur will spread. Okay, say maybe I will say 20 pixel again, and then I say RGBA, that is my this thing, and I will say 255 comma 255 comma 255, and right now I say 1, that is totally opaque. And we see how what will happen with our this thing. Where is my that? So what happens here is, you see the shadow has come up. Okay, there's 20 pixel on the X and 20 pixel on the Y, and this much of blur. So for example, I just simply do what, I make it just 2 pixel to the x-axis. Now let us see what happens. Now you see x-axis, it has not gone 2 pixel because firstly 20 pixels is too much of spread. Okay, let me make it 2 pixel only spread, so you understand. So if I increase the x, say for example I got now the 40 pixel x. Rasib Jan, she came late, let me admit her first. Okay, admit. Now I got 40 pixel on an x. Now you see it is moved to the right because 40 pixel to the X. And if you say, like for example, just 2 pixel on an X, so that it will be there. But I just want to see first this. Okay, the X, it has moved just 2 pixels, but I'm saying like I got 40 pixels on a Y. So that means Y, now it will go vertically down, too much down. Okay, because Y axis is this one. Rasib Jan is still not admitting, because y-axis means vertical and x-axis means horizontal. So if you want to make it, maybe I make it, you understand it vertical, and this what I'm saying, that if I say here minus 40,
That means it will go from now, because y-axis is vertical, top to bottom, right? X-axis is left to right. So if I make it negative 40, it means it will move up to the negative direction. So now you see it will go up. Okay. Similarly, if I say it no, and just give me some 2 pixel only, 2 pixel. Damn, on this side it is. I'm just giving 2 pixels so it's balanced. Now if I say here, say 20 pixel x, now you see it has moved 20 pixel to the right. But if I say negative 20 pixel, it will do what? It will go in another direction, right? It will go 20 pixel on this side. Because you are, what has happened with the Rasib Jan? Why is not admitting? Okay. So x-axis means moving on a left to right. Okay. If you say negative, it will move to the left. If you say positive, it will move to the right. And the second argument is the y-axis. Y-axis, if you say negative, it will move towards top. And if you say negative, it will move towards downwards. Does it make sense? Then the next one is how much blur you can have. I just want to say just 1 pixel blur. So that means it will make it solid color. See, the shadow doesn't look like a shadow. It's a solid because it's not giving the blur. So shadows should always be some kind of a blur, right? So I'm saying just 20 pixel for the blur is nice, because more blur, it will be like a haze. So I can say, if I say 90 pixel blur, it will give total blur. You see, it is like a haze. Okay. Now let me get it to 20 pixels nicely. So it is 20 pixels. Okay. Getting? So what is the first argument? Tell me. First argument is x-axis, how much you want to move to the x, and then second is the how much you want to move to the y. So I will not say here, I will just say 5 pixels on x to make it nice, and 5 pixels on the y, and then I say 20 pixels blur. And then what's the next thing? How much spread? How much will it spread? Maybe I will say let it spread for just 2 pixels right now. Okay. Or I will increase it. I will say just 5 pixel spread. Okay. So that it spreads a little more. But it doesn't look like a button. It looks like kind of a something, it doesn't look good. So we have one more option. If I add up here, and one more thing is this is white, because if I say not white, I want black, for example. So if I say here 0, 0, 0, I will make all zeros, right? 0, 0. But problem with that 0, 0, 0 is my background is also black, so it won't be seen. We won't be able to see it. The shadow is there, but that shadow is black, so it won't be seen, right? Okay. Now I may change the color. Maybe I will change the color to the red. I will change to the red. So it accordingly changes these 2, 4, 1, 9 and 9. Okay. Now if I give it a go, and you will see you got a red shadow. So I want a white shadow because the haze kind of thing. So I will go on the top and take it to the corner to get a full white. यानी कि जो आपका ये है कलर पिकर, इसके टॉप में आप सीधे ऊपर ले सकते हो कॉर्नर पे, ताकि you get the maximum white possible. But I'm saying RBGA. Then I need a fourth argument, that is how much transparent it is. Maybe I say 0.7, 0.7 as a transparency. How much transparent it will look. Okay. This transparency will be more visible when we go for the glass morphism. But the most important thing which you will see here is that I will do it not here. Firstly, I will do it on the hover. Okay. Control, Option and down arrow. No, that's Command Z. I say Command and down arrow to get it down. Is it getting down? What's happening? Now, 1 second. I copy this and say Command, not Command, I should say Option and down arrow. Okay, to get it in the hover. When you hover, this thing should happen. That means when you are hovering, then the shadow comes up. Okay, it will look nice then. Now something is happening, right? And one important thing I will change here is here before the 5 pixels, which is the x-axis, how much you're going to x-axis, I will say something here. After the colon, I will say here inset. I will say here what? Inset. What I will inset do is the shadow will not go out, shadow will go in. Okay. So that is what I want here with the button. That if I hover, shadow will go inside.
Not rather than going out, it's going inside. That something happens to this. I don't want it to go outside. I want to go it inside only this time. Okay. And maybe I want to change the font a bit also, so that it will look nicer. So what I'm trying to do is on the hover, I'm doing two things now. I'm saying box shadow. One is inset. What is inset means? The shadow is going inwards, and then x-axis 5 pixel, y-axis 5 pixel. This is the blur. This is the how much radius, and then RGBA is the color with the with here the transparency and all. And then I may also change the font. What do you say if I change the font size with the hover? So doesn't it look good if I say, if I change the font size? Maybe I will change the font size. For example, let me show you the font size. Make it a little bigger for a while, but I will not make it bigger at all. I will show you what I do, but just I'm getting bigger to show you that when I go there, it's becoming bigger, right? When I hover it, the mouse, it becomes bigger. But we shouldn't do like this. We should just do 1% of the bigger. What was the font of the button? It is 20 pixel. I just make it 21, so that there will be little kind of little animation kind of thing. Not like it becomes, the button becomes like a giant. That doesn't look good, right? So if I hover, it is a little bit making, little bit bigger. So it given little kind of a little animation. Something is happening when the user says it. Okay. Does it make sense what I'm doing? Any questions regarding this? We can also put up the shadow to the text also. This is the box shadow to the buttons and boxes and anything, but we can also put the shadow to the text, what is called as a text shadow. Okay, so what is this Ramadan Kareem? Which one is this? What is this? Tell me. So मुझे इसको स्टाइल करना है, मुझे किस में करना है? What is this? It is H1. H1 किसके अंदर है? मेन कंटेनर में H1 है ना. मैं चाहता हूं मैं इसको दे दूं टेक्स्ट शैडो. क्या दे दूं? सो आई से टेक्स्ट शैडो. Okay, I'm getting text shadow to it, right? And text shadow वही x axis कितना, y axis कितना, and so on, and also up and down you can move. x axis में कितना जाएगा? अगर मैं कहूँगा सिंपल 5 है, 5 पिक्सल, ज़्यादा नहीं करना ताकि वो इसके नीचे थोड़ा सा एक शैडो आ जाए बस. तो आप टेस्ट कर सकते हो, इंक्रीज वैल्यूज फ्रॉम x y and just test many values to it. I'm just giving 5 pixel, 5 pixel. What do you say? I just say 5 pixel to the x axis and 5 pixel to the right axis. Okay, and इसमें वो भी blur कितना देना चाहते हो? Maybe I also give the 5 pixel the blur and all, and then I will say simply white. You can RGBA or you can simply give the white. We can also give here, जो हमने box यहाँ पे किया ना, ये box shadow, I can simply write here the color name. Okay, now let us see how it looks. Now it is getting Ramadan Kareem, but it is getting too much of this thing, right? It doesn't look good. So you can test it with smaller values or more values, so that it gets adjusted properly. So I'm saying here 5 pixel, 5 pixel, and 5 pixel, maybe able to 10 pixel to make it a little hazy. Okay, now it's looking better a little. Because I'm getting more blur now into it, so that my original text should be visible properly. अगर मैं blur ज़्यादा नहीं करूँगा तो वो पीछे वाला ज़्यादा hamper करेगा और आगे वाला दिखेगा नहीं अच्छे से. So now it's getting a little bit of kind of those fonts and all. Okay, now we have to style up our video. Okay, the video container, the video, and that cross icon. So क्रॉस आइकन तो दिख ही नहीं रहा ना, क्योंकि वो ब्लैक में छुप गया है. सो वी हैवंट स्टाइल द क्रॉस आइकन. इंडेक्स में जाएंगे हम. यहाँ पे आप देखो दो चीज़ें मेरे पास हैं. अब मेन ख़त्म होने के बाद मैंने इस सेक्शन को मैंने अब स्टाइल करना है. उसमें मेरे पास वीडियो कंटेनर है, एक वीडियो कंटेनर, उसके अंदर वीडियो है, और उसके अंदर ये आई क्लास है जिसका नाम मैं एक नाम दूंगा. यहाँ पे मैं इसका नाम दूंगा एक, जिसको मैं पकड़ूंगा, आई विल कॉल इट क्रॉस. ठीक है, मैंने एक और क्लास नेम दिया इसको. मैंने इसको एक और क्लास नेम दे दिया जिसका नाम मैंने रखा क्रॉस. यानी कि मैं इसको किसी भी नाम से पकड़ सकता हूँ. FA शार्प, FA सॉलिड, FA सर्कल, X मार्क, ये उसने पकड़े हैं. फॉन्ट ऐप सबने खुद ही.
ये मैं अपना करूँगा, इसको नाम दूंगा ताकि मैं इसको खुद से अब इसके ऊपर कोड करूँगा। ठीक है, मैं इसको पकड़ पाऊँगा इस नाम से जो मैं यहाँ पे रख रहा हूँ, क्रॉस। मैंने क्रॉस किया है। ठीक है जी। नाउ आई गो टू द style.css। अब मुझे किसको पकड़ना चाहिए? आई कुड से डॉट क्रॉस, राइट? आई कैन से डॉट क्रॉस, क्योंकि वो दिख नहीं रहा ना। सो डॉट क्रॉस, व्हाट इज से डॉट क्रॉस? क्या करेंगे इसका? बैकग्राउंड कलर दें कि क्या करें इसको, बताएं मुझे आप। कलर सर। कलर वाइट देना चाहिए पहले ही, है ना? आई शुड दी कलर शुड बी वाइट, क्योंकि वो दिखेगा ना, पहले वो दिख ही नहीं रहा था ना। सो अब दिख गया कलर वाइट। ठीक है, क्योंकि वो ब्लैक के पीछे ब्लैक ही हो रहा था तो वो दिख नहीं रहा था। ओके, नंबर 1। नंबर 2, हाँ जी, अक्सर जो साइज बटन, जी, इसकी पोजीशन, हाँ क्या बता रहे थे? साइज सर, ये बहुत बड़ा हो रहा है। ये बड़ा हो रहा है? ये तो हमने कल बड़ा किया क्योंकि ये छोटा था। मेरे ख्याल से ठीक है, क्योंकि हम इसके यहाँ पे लगाएंगे टॉप पे। मैं इस बटन को, देखिए ये जो क्रॉस बटन है ना, अक्सर वीडियो जब आता है वो प्ले होता है यहाँ पे, और क्रॉस बटन ऊपर यहाँ पे होता है स्क्रीन के टॉप राइट कॉर्नर पे, है ना? आपने पोजीशंस मैंने बताया आपको एब्सोल्यूट। अब एब्सोल्यूट यूज़ करके मुझे आप बताएं कि मैं इसको कैसे पोजीशन करूँगा यहाँ पे टॉप कॉर्नर पे। ठीक है ना, बताएं मुझे। सो फर्स्टली आई विल से पोजीशन, है ना? क्या कहूँगा पोजीशन? एब्सोल्यूट। ओके, एब्सोल्युटली। लेट मी राइट द एब्सोल्यूट, जो आप बता रहे हो मैं वही लिखूंगा। ठीक है, फिर अब टॉप बताओ, टॉप से कितना दूरी पे? जो ये टॉप है, ये टॉप है ऊपर टॉप, तो उसके नीचे यहाँ पे होना चाहिए ना, ये इस पे। तो मानो टॉप से 30 पिक्सल की दूरी पर। सो इसका टॉप जो होगा उसको बोलोगे हाँ भाई साहब टॉप इसका 30 पिक्सल रखो। ठीक है, हो गया। और ये कहाँ पे होगा? राइट की दूरी पे या लेफ्ट की दूरी पे बोलूँगा? राइट की दूरी पे, क्योंकि राइट। राइट है ना ये। तो इसका राइट भी लिखेंगे हम भाई, राइट जो इसका है ना वो आप 30 पिक्सल रख लेना। ठीक है, तो राइट इसका खाली 30 पिक्सल होगा, यानी कि राइट से 30 पिक्सल की दूरी पर। खेल खत्म हो गया कि 30 पिक्सल उसके, 30 पिक्सल उससे, 30 पिक्सल टॉप से, और 30 पिक्सल, यानी कि ये जो है, अगर आपको समझ नहीं आ रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो मेरा ये जो मेरा ये है, ये जो कर्सर है, मैं चाहता हूँ ये यहाँ पे आ जाए ना, ये क्रॉस। तो मैं कहता हूँ कि टॉप से, ये जो है यहाँ पे फिलहाल टॉप पहले, है ना? ये टॉप है, टॉप से कितनी दूरी पर होगा ये? दैट इज़ 30 पिक्सल मैंने कहा इसको। और अब ये क्या हो गया? राइट, क्योंकि ये इसका राइट है ना, ये लेफ्ट है, ये टॉप है, और ये बॉटम है स्क्रीन का, व्यू पोर्ट का। मैं कहता हूँ टॉप से कितना भाई 30 पिक्सल रखना टॉप इसका, यानी कि ये 30 पिक्सल आ जाएगा। तो आएगा ये थोड़ा नीचे। अब टॉप से अगर आएगा, लेकिन अगर मैं खाली टॉप बोलूँगा तो ये यहाँ पे आ जाएगा, ये क्रॉस यहाँ पे आ जाएगा। अब कह रहा हूँ नहीं, राइट इसका 30 पिक्सल रखना है, यानी कि राइट जो ये है इसका 30 पिक्सल रखना, बस आ गया, तो यहाँ पे आ जाएगा ये। ठीक है, हो गया। ओके, नाउ देखिए कहाँ पे आ गया है, क्रॉस आ गया ना टॉप पे। ये देखिए क्रॉस कहाँ पे दिख रहा है, ठीक है ना? सो इट इज़ कम टॉप 30 पिक्सल एंड राइट 30 पिक्सल। खेल ख़त्म, आ गया ये जो जहाँ पे हमें रखना था। अब हम इस वीडियो टैग को, जो वीडियो हमारा है इसका पहले कंटेनर है वीडियो कंटेनर, और उसके अंदर एक वीडियो टैग हमारा है। अब इसको हम करेंगे। ठीक हो गया? समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ जी। यस सर। ओके, नाउ वीडियो कंटेनर। अब वीडियो कंटेनर को क्या करोगे आप? डॉट वीडियो कंटेनर, ठीक है ना, क्योंकि उसका नाम है वीडियो कंटेनर। वही है कि पता नहीं दिखाने कहाँ दिखाएगा पहले, जब तक आपने इस्तेमाल नहीं किया। सो मेरा ख्याल है वही नाम रखा होगा, फिर भी मैं देखूंगा क्योंकि आई डोंट नो। वीडियो कंटेनर, या एग्जैक्टली। सो वीडियो कंटेनर ही नाम है। अब बताएं वीडियो कंटेनर में क्या करना चाहते हो आप? हाँ, कोई बताएगा मुझे? हाइड 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 करना है सर। वीडियो कंटेनर में बोल रहे हैं कि आप हाइड कर दो इसका, है ना? यस सर। और कोई बताएगा कुछ? मैं चाहता हूँ पहले कि, क्योंकि मुझे ये जो वीडियो है ना, ये मुझे हटाना है। ये मुझे क्या करना है? मुझे ये हटाना है बाद में। तो इसलिए मुझे कुछ काम करना पड़ेगा कि ताकि मैं ये हाइड कर सकूं। ठीक है, एक तो वो चीज़ हो गया। उसके लिए मैं बताऊंगा अभी क्या करूंगा। पहले उसमें पहले इसको स्टाइलिंग करेंगे हम वीडियो कंटेनर की।
ठीक है। इसकी पोजीशन मैं फिक्स्ड ही रखता हूँ, ये भागना नहीं चाहिए, क्योंकि ये ऊपर आना चाहिए, चीज़ों के ऊपर आना चाहिए और फिक्स होके आना चाहिए। तो मैं इसको कहता हूँ पोजीशन फिक्स्ड। फिक्स्ड मतलब ये मूव नहीं होगा, ठीक है। सारी चीज़ें अगर मूव होंगी, फिक्स्ड मूव नहीं होगा। वो हम CSS के वक्त अच्छे से देखेंगे। यानी कि अगर मैंने कोई चीज़ यहाँ पे, जैसे कभी आपका क्या होता है कि आपका शॉपिंग कार्ट है, शॉपिंग कार्ट में सेल 40% लगा है, मानो यहाँ बॉटम पे सेल 40% लगा है यहाँ पे, ठीक है। और जब आप पेज को स्क्रॉल कर रहे हो नीचे, ऐसे स्क्रॉल कर रहे हो ना पेज को, सारा पेज हो रहा है लेकिन 40% उधर ही रह रहा है। वो जो 40% का बटन है या क्या है आपने पिक्चर लगाई है, वो पिक्चर मूव नहीं हो रही है। क्यों? क्योंकि उसकी पोजीशन मैंने फिक्स्ड रखी होती है। इस तरह के मैं कहता हूँ कि भाई इसकी पोजीशन फिक्स्ड रखो, इसको चिपकाओ उधर। अच्छा जी, इसका टॉप और मैं चाहता हूँ कि बिल्कुल बीच में आए। और मैं क्या चाहता हूँ इसका, अगर उसको मुझे इसको बीच में लाना है, पूरा स्क्रीन के बीच में लाना है, तो क्या करना चाहिए हमें इसका? 50% टॉप। 50%। वेरी गुड, टॉप 50%। माशाल्लाह, यू आर डूइंग परफेक्ट नाउ। आप तो खुद ही बोल रहे हो। अच्छा, 50% टॉप। अगर टॉप करेंगे 50%, वो तो टॉप 50% आ जाएगा, लेकिन ये तो बिल्कुल आएगा ना इधर लेफ्ट में आएगा ना। लेफ्ट 50%। लेफ्ट भी 50% करेंगे, इसकी लेफ्ट भी करेंगे 50%। लेकिन अब इसमें एक पंगा है, ये जो आप इसका लेफ्ट 50% टॉप 50%, ये परफेक्ट आपने कहा, लेकिन क्या होगा कि ये इस तरह से होगा। देखिए मैं आपको समझाता हूँ क्या होगा, ध्यान से देखें। ये मेरा स्क्रीन है, ठीक है। ये मानो इसका सेंटर है, ये इसका टॉप 50% है, और ये इसका लेफ्ट 50% हो गया। मानो ये आ गया ना बीच में। इसको अगर हम 4 हिस्से करेंगे, ठीक है, ये वाला जो पॉइंट है ये बिल्कुल सेंटर है। मैं कह रहा हूँ टॉप रखना भाई साहब, जो मेरा पिक्चर है, जो मेरी ये वीडियो है, ये मेरा वीडियो है, इसका जो टॉप होगा, क्योंकि हम जब टॉप और लेफ्ट की बात हो रही है तो हम इस कॉर्नर की बात करते हैं, ये वाला कॉर्नर हम इसकी बात कर रहे हैं, जो ये कॉर्नर है, ठीक है। मैं कह रहा हूँ कि इसका टॉप 50% रखना और इसका लेफ्ट 50% रखना, यानी कि ये 50% इधर जाएगा, 50% इधर जाएगा, इस पॉइंट पे आ जाएगा, बीच वाले पॉइंट पे, परफेक्ट। लेकिन वीडियो आपका इधर आएगा, है ना। आपने ठीक कहा, आपने अच्छा कहा, आपने इसको कहा टॉप 50% और लेफ्ट 50%, लेकिन भाई साहब ये इसका जो कॉर्नर है वो आ गया उधर, वीडियो तो इस साइड आ जाएगा ना, आएगा कि नहीं। अब मुझे क्या करना चाहिए, मुझे देखना चाहिए इसके 2 हिस्से करने चाहिए, इस वीडियो के 2 हिस्से करने चाहिए बराबर। एक इसको देखना चाहिए कि इसका टॉप का 50% जो है और लेफ्ट का 50%, ताकि ये जो सेंटर ऑफ द पिक्चर है, ये जो वीडियो है, इसका जो ये सेंटर है, ये मैच होना चाहिए इसके साथ। अगर आपने कंप्यूटर ग्राफिक्स पढ़ा है इन योर सी प्रोग्रामिंग, कंप्यूटर ग्राफिक्स BCA के अंदर और MCA के अंदर भी है सब्जेक्ट, ठीक है, उसमें हम ट्रांसफॉर्मेशंस एंड ट्रांसलेशंस करते हैं, तो उन लोगों को तो बिल्कुल समझ ही आएगा। तो सिंपली जिनको नहीं किया है तो उनके लिए मैं सीधे बताऊंगा। देखिए मैं चाहता हूं कि अब जो ये रेड बॉक्स है, क्योंकि आपने जब कहा टॉप 50% और लेफ्ट 50%, आपने कहा, आपने इस बॉक्स को इधर लाया, जो मैंने दिखाया रेड बॉक्स। लेकिन मैं चाहता हूं जो मैं ग्रीन बनाऊंगा, इसका सेंटर ऑफ द वीडियो, जो रेड में बना है मेरा वीडियो टैग है, ये ग्रीन बटन, ये जो ग्रीन है द सेंटर ऑफ द वीडियो, दिस इज रेड वन इज द वीडियो, ओके, द ब्लैक वन इज योर व्यू पोर्ट, दैट मीन्स योर स्क्रीन। अब मैं चाहता हूं कि जो वीडियो का सेंटर है वो ट्रांसलेट हो जाए, इधर आ जाए, वो ये इधर आ जाए, ताकि जो ये रेड बॉक्स है ये यहाँ पे बने ऐसे, ताकि ये बिल्कुल स्क्रीन के सेंटर पे आए। समझ में आ रहा है? परफेक्ट, सबको समझ आ रहा है? क्योंकि मैं चाहता हूं कि अब ये जो मेरा रेड बॉक्स है, इसका सेंटर और मेरे स्क्रीन का सेंटर मैच हो, तब जाके तो ये आएगा ना। यानी कि कुल मिला के मुझे क्या करना चाहिए, मुझे आप बताएंगे। ये मेरा स्क्रीन है, रेड वाला मेरा स्क्रीन है, और ब्लैक वाला, क्योंकि जब आपने ये बीच में, इसके लिए इसका बीच है, लेकिन वीडियो यहाँ पे आया था, अब मैंने देखा कि इसका सेंटर कौन है। सो दैट मीन्स आई हैव टू सी 50% ऑफ द टॉप, जो ये 50% ऑफ द टॉप ऑफ द वीडियो है, जो वीडियो का टॉप है उसका 50%, क्योंकि ये अगर इसका टॉप है, इसका 50% हो गया ये, ताकि मैं इस लाइन पे आ जाऊँ, ठीक है। और इसका लेफ्ट जो है उसका भी 50%। अगर मुझे अब चलना होगा इस सेंटर ऑफ द, आई हैव टू गो टू द सेंटर ऑफ द वीडियो, ओके। अगर मुझे ये एक बॉक्स है, मुझे इसके सेंटर पे जाना है, तो मुझे देखना है कि जो इसका लेंथ है ना, फॉर एग्जांपल इसका टॉप यहाँ, अगर इसका लेंथ 10 है,
यानी कि टॉप से मुझे 5 आना है, यानी कि 50% ऑफ द टॉप मुझे आना है इस लाइन पे, अगर क्योंकि मुझे आना है ना इस लाइन पे पहले, ठीक है। तो मैं आऊँगा 50% ऑफ द टॉप, दैट इज़ 50% ऑफ टॉप, वो मैं माइनस करूँगा ताकि मैं यहाँ पे आ गया। अब मैं तो इस पॉइंट पे आ गया, अब मुझे इधर आना चाहिए, तो मुझे क्या करना चाहिए, माइनस 50% ऑफ लेफ्ट। तो पहले मैंने 50% ऑफ टॉप किया, मैं यहाँ पहुँच गया। अब मैंने 50% ऑफ लेफ्ट किया, मैं यहाँ पहुँच गया ना इसके सेंटर पे। तो यानी कि अगर मुझे इसको ट्रांसलेट करना है, क्या करना है, अगर मुझे इसको ट्रांसलेट करना है, यानी कि मुझे ये बॉक्स को आगे चलाना है, मुझे ये बॉक्स जो है इसका जो सेंटर है इस सेंटर के साथ मैच करना है, तो मुझे माइनस 50% टॉप करना चाहिए, मगर किसका, बॉक्स का, और मुझे माइनस 50% लेफ्ट करना चाहिए इस रेड बॉक्स का। तब जाके ये 50% टॉप खिसकेगा ऊपर, क्योंकि माइनस जब कर रहा हूँ तो ऊपर खिसकेगा ना, और 50% लेफ्ट खिसकेगा। नहीं आई समझ, गेटिंग पॉइंट। सो इसको हम बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन, एंड वी आर ट्रांसलेटिंग इट, वी डू ट्रांसफॉर्मेशन बाय ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन का मतलब होता है आप फिजिकली पॉइंट को खींच रहे हो, कितना खींचोगे भाई, एक्स में इतना खींचो और वाई में इतना खींचो, एंड सो ऑन, ठीक है ना। तो वही चीज़ मैं इसको यहाँ पे करूँगा। हमारा कोड कहाँ गया, सर अगर 25% करेंगे, नहीं 25% क्यों करेंगे, आपको फिर समझ नहीं आई मैं क्या बोल रहा हूँ। मतलब मैं अगर हम फॉर एग्जांपल देखो बॉक्स कहाँ है हमारा, ये जो बॉक्स हमारा है, जो वीडियो है ना, वीडियो पहले इसका साइज़ इतना छोटा कैसे है, अच्छा हमने हमें साइज़ को रखा है, अच्छा ना शायद साइज़, चलो मैं इसको साइज़ हटाऊंगा फिर वो, पहले मुझे आप देखिए जो वीडियो आ गया ना, इसका जो ये टॉप है ना, ये जो इसका ये कॉर्नर है, ये वाला कॉर्नर, ये सेंटर ऑफ द स्क्रीन पे आ गया, या सेंटर ऑफ द स्क्रीन पे आवा, मगर मे ये ड्रैग कर, अगर बात हेक ड्रैग कर, फॉर एग्जांपल माउस से ड्रैग कर, मे ये खालन हूर वन तक ये वीडियो सेंटर कि ये कैंडल, तो ये कॉर्नर यह स्क्रीन सेंटर गो, ये कैंडल यह गन सेंटरस पे गो, बह कर गो यूत अमिस टॉप ना कि यूत यह टॉप यह खालन बह गो हूर, यानी कि 50% ये वीडियो टॉप ना सह खालन बह हूर कुन, ठीक है, बे पकन बह 50% लेफ्ट, इस लेफ्ट, अगर अमिस लेफ्ट ना पूरे कि यूता वीडियोस विड़ित तमिक 50% पकन बह खोवर, तमिक टॉप तमिक 50% पकन बह हूर, तम क्या गई वीडियो सेंटर यी स्क्रीन सेंटरस मज, गेटिंग माई पॉइंट, ओके। सो हाउ आई विल डू इट, आई विल से ट्रांसफॉर्म फर्स्टली, आई विल से व्हाट, ट्रांसफॉर्म, दिस इज अ ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। ट्रांसफॉर्म में मैं कहूँगा इसको भाई तू ट्रांसलेट कर, क्योंकि मैं किसके ऊपर का बात कर रहा हूँ, वीडियो कंटेनर की, वीड कंटेनर को स्टाइल कर रहा हूँ, तो मैं इसको कर रहा हूँ ट्रांसलेट। अबे ट्रांसलेट स्क्रीन नहीं होगा, ये ट्रांसलेट खाली ये वीडियो का बॉक्स होगा, जो मेरा वीडियो का बॉक्स है, कंटेनर है, ये वो होगा। कितना कट करूँ ट्रांसलेट, बाई एक्स में 50% माइनस कर दे, क्योंकि पीछे चल, है ना, और कामा, और 50% वाई एक्सिस में भी पीछे चल, ठीक है। नाउ if I see this here, now it is gone 50% up, 50% left, now it is matching exactly, जो इसका सेंटर है, इस वीडियो का जो सेंटर है वो मेरे स्क्रीन का भी सेंटर है। अगर मैंने माइनस नहीं किया होता, देखिए अगर मैंने माइनस नहीं किया होता, ये 50% एक्स से आगे भागता, 50% वाई से आगे भागता, ये किससे ज़्यादा ही बोन आती, क्योंकि जब मैंने इसको यहाँ पे कहा कि 50% टॉप 50% लेफ्ट आप कर लो, इसने अपने वीडियो का कॉर्नर स्क्रीन के सेंटर पे लाया। लेकिन अब मैं इसको कहता हूँ कि भाई साहब तू 50% खस हूर, एक्स तरवी 50 खस ये, ताकि ग मैच कम चोन स्क्रीन ग मैच यमिस सत। डज इट मेक सेंस व्हाट आई एम सेइंग, ओके, नहीं आया समझ, हाँ जी, अगर समझ नहीं है मैं समझाऊंगा, कोई मसला नहीं, बोले आप, लेकिन पहले इसका मैं ये साइज़ हटाऊंगा ना, इसका साइज़ कहीं हमने सेट किया है, यह लकुट हमें वारिया, अस जो साइज़ ये मज कुन जाए, हाँ वीडियो का साइज़ हमने दिया यहाँ पे, इसको मैं हटाऊंगा ये, ओके। नाउ आई एम गेटिंग टू बिग पिक्चर्स, ओके, इट इज़ गेटिंग टू बिग, एंड नाउ आई वांट टू align to the center and also make it, I will use the flex now to style it using the style.css,
आई विल डू व्हाट, वीडियो कंटेनर मेरे पास है ना ये, आई विल यूज़ द डिस्प्ले एज अ फ्लैक्स. सो आई विल टेल हिम कि भाई साहब तू जो मेरा कंटेनर है ना, तू 100% पकड़ जगह अपनी, हाइट भी विड्थ भी. पहले मैं इसका विड्थ रखूँगा 100%. भाई ये क्या हो गया, आई विल से विड्थ 100%. आप मेरे साथ कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? एंड आई विल से हाइट 100%. ठीक है, विड्थ भी 100%, हाइट भी 100%. लेकिन डिस्प्ले में इसका फ्लैक्स रखूँगा, डिस्प्ले में रखूँगा इसका फ्लैक्स. मैं समझाऊंगा बाद में डिस्प्लेज के सारे टाइप्स, जैसे फ्लैक्स, फ्लैक्स बॉक्स या बाकी चीज़ें या ग्रिड वगैरह, वो सारे हम करेंगे बाद में. ठीक है, क्योंकि हमारे कॉन्सेप्ट जो है ना वो रिफाइन होते जाएंगे रोज़ बरोज़. सो इफ़ आई से जस्टिफाई कंटेंट एंड आई विल टेल हिम सेंटर, उससे क्या हो जाएगा जस्टिफाई कंटेंट में कि दो चीज़ें होती हैं, एक हॉरिजॉन्टल सेंटर, एक वर्टिकल सेंटर. ठीक है, जो हॉरिजॉन्टल सेंटर यानी कि हॉरिजॉन्टल यानी कि ऐसे एक्स एक्सिस में, वो हमारा जस्टिफाई कंटेंट करता है. और वर्टिकल सेंटर में लाता है अलाइन आइटम्स, जैसे हमने कल किया था अलाइन आइटम्स, वो भी मैं सेंटर करूँगा. यानी कि ये जो वाला है ये हमारा करेगा जस्टिफाई टू द, दिस विल जस्टिफाई आवर सेंटर पे लाएगा हमारा, ये क्या कहते हैं उसको, हॉरिजॉन्टल यानी कि एक्स एक्सिस, और अलाइन आइटम हमारा वर्टिकल सेंटर पे लाएगा. फिलहाल हम देखते हैं कि हमारा कैसा दिख रहा है अभी. ठीक है, बिल्कुल सेंटर पे आ रहा है एंड ऑल दैट, और हमने इसको स्क्रीन के सेंटर पे लाया इसको एंड ऑल दैट हमने किया इसमें. ओके, और मैं इसका जो बैकग्राउंड है ना वो मैं रखूँगा, आई कैन चेंज द बैकग्राउंड एज ब्लैक. अगर आप इसको छोटा ही करना चाहते हैं वीडियो को, ओके, आई विल नॉट से हाइट 100% एंड विड्थ 100%, देन वो हम वीडियो को कर लेंगे. ठीक है, फिलहाल हमारा हम वीडियो के ऊपर थोड़ा छोटा करेंगे और बॉक्स इतना ही रखेंगे, क्योंकि बॉक्स जो मेरा है, क्योंकि अभी अभी मेरा वीडियो पूरे बॉक्स ले रहा है. ठीक है, मैं कहूँगा भाई साहब बॉक्स तो ले ले, क्योंकि मेरी पिक्चर जो पीछे वाली है वो छुपनी चाहिए, इसलिए मुझे बड़ा ही चाहिए, लेकिन वीडियो में छोटा करूँगा. यानी कि आई विल नाउ डू, जो मेरा डॉट वीडियो है, जो वीडियो कंटेनर है उसमें जो वीडियो टैग है, अब मैं उसको करूँगा, ये उसके ऊपर काम करूँगा. उसको बोलूँगा मेरे पोजीशन टू रिलेटिव बना, यानी कि तू घूमना अपने जो पेरेंट है, इसका पेरेंट कौन है, वीडियो कंटेनर, यानी कि ये इसी में घूमना. अगर तुझे घूमना है तो इसी में घूमना, रिलेटिव बना रहा हूँ, यानी कि इसके रिलेशन में कर रहा हूँ किसी साथ, अपने पेरेंट के साथ. तो यानी कि पोजीशन तेरी फिक्सड नहीं है, पोजीशन यानी कि तू घूम सकता है. लेकिन अगर मैंने पोजीशन एब्सोल्यूट किया वो पूरे स्क्रीन में घूमेगा. जब मैंने पोजीशन रिलेटिव की तो ये अब अपने पेरेंट में घूमेगा, जो पेरेंट बॉक्स है उसमें घूमेगा. ये बॉक्स मैंने किया, अब ये उसकी रिलेटिव है. ठीक है, ठीक हो गया, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब मैं इसको कहूँगा मैक्स विड्थ, जो तेरी मैक्सिमम विड्थ होगी ना, तू एक काम कर, वो मैं रखता हूँ लाइक 90 पिक्सल, 90% ऑफ द बॉक्स रख ले, ताकि छोटा हो जाए. जितना बॉक्स है उतना ही करो, क्योंकि वीडियो अभी और भी बड़ा हो रहा है मेरे बॉक्स से, क्योंकि बॉक्स मैंने विड्थ एंड हाइट 100% कर दिया है, लेकिन ये तो उससे भी बड़ा हो रहा था, इसलिए मैं इसको थोड़ा सा 90% ही करूँगा ऑफ माई बॉक्स. और इसकी हाइट जो है ना, बिल्कुल मैं उसका हाइट जो है वो भी 90 पिक्सल करूँगा, 90% कर दूँगा, 90% ऑफ द बॉक्स. मीन्स ये रिलेटिव है तो अपने बॉक्स का 90% पकड़ेगा ये, 90% हाइट एंड विड्थ. ठीक है, तो अब अगर मैं इसको देखूँगा तो अब ये अपने बॉक्स इसका जो है ना वो बहुत बड़ा है, वो दिख नहीं रहा अभी, क्योंकि वो अगर मैं बॉक्स का कलर वाइट कर दूंगा तो आपको दिखेगा वो. अगर मैं बॉक्स का कलर करूँगा, बैकग्राउंड कलर वाइट कर दूंगा, बैकग्राउंड कलर वाइट, आपका इसका बॉक्स दिखेगा. ठीक है ना, तो ये बॉक्स जो है उसने 100% पकड़ा था सारा. ठीक है, तो लेकिन वीडियो मैंने छोटा कर दिया. अब मैं बॉक्स को वाइट नहीं करूँगा, बल्कि मैं बॉक्स को ब्लैक करूँगा, ताकि मुझे ठीक दिखे. ठीक है ना, और मैं इस वीडियो, जो मेरा वीडियो है इसमें कंट्रोल्स ही नहीं है. इंडेक्स पे जाएं आप, और जो वीडियो है उसमें कंट्रोल्स लाएं आप, वीडियो सोर्स, इसमें कंट्रोल्स लाएंगे हम, जो ना कल हमने किए थे काम, कंट्रोल्स. नाउ आई गॉट द कंट्रोल्स. ओके, नाउ आई कैन प्ले दिस, आई कैन पॉज इट. ठीक है, और आई कैन नाउ, अब ये जो बंदा है ये आगे बैठ गया ना उसके, किसके, ये जो मेरा वीडियो है इसने मेरा सारा स्क्रीन चोरी कर दिया ना,
जो मेरा वो पिक्चर एंड ऑल वो गायब हो गई, ठीक है ना। तो हमें क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए बताएगा कोई मुझे? हाँ जी, हाइड। मुझे हाइड करना चाहिए किसको? वीडियो मुझे हाइड करना वीडियो चाहिए वीडियो को। कंटेंट वो कैसे करूँगा मैंने क्या वीडियो बताया था कल, क्या कंटेंट करूँगा मैं? जावास्क्रिप्ट में सो विजिबिलिटी नन करके, डिस्प्ले नन, डिस्प्ले करूँगा नन, किसका? वीडियो का, वीडियो का कंटेनर जो है उसका, ताकि वो सारा कंटेनर बंद हो जाए। नाइस, दैट इज ऑल्सो ट्रू। इफ आई डू डिस्प्ले नन वो गायब हो जाएगा, उसका डिस्प्ले दिखेगा ही नहीं, कुछ वो दिखेगा ही नहीं। लेकिन मुझे वो गायब नहीं करना, मुझे हाइड करना है। क्या करना है? सर उसके लिए विजिबिलिटी अगर जीरो रखेंगे, नन Visi- करेंगे तो फिर विजिबिलिटी हिडन, हिडन, यू आर राइट जावेद, नाइस। विजिबिलिटी अगर हिडन करेंगे और विजिबिलिटी हम रखेंगे, या तो हाइड करेंगे, है ना, दोनों चीज़ें, है ना। तो पहले मैं एक और क्लास दूंगा इसको, किसको? जो मेरा वीडियो कंटेनर है, इसका नाम है वीडियो कंटेनर, है ना। इसको अगर मैं एक और क्लास दूंगा, कॉल्ड इट एक्टिव, कॉल्ड इट एक्टिव, कि अगर ये एक्टिव है कि नहीं। अक्सर हम बुक्स में यही देखते हैं कि हम एक्टिव रखते हैं उसका नाम, ताकि ये एक्टिव है। जब एक्टिव होगा तब ये करेंगे हम काम, यानी कि अगर ये एक्टिव है, फॉर एग्जांपल मैं स्टाइल में पकड़ूंगा, कैसे पकड़ूंगा एक्टिव को आप, क्योंकि मैंने इसको दो, जैसे दो दो हम क्लास नेम देते हैं ना, ऐसे मैंने दूसरा क्लास नेम दिया, मैंने कुछ खास नहीं किया। जो मेरा ये क्लास सेक्शन क्लास है, इसका नाम है वीडियो कंटेनर। अब मैंने दूसरा नाम भी इसका रखा है एक्टिव, बस इतना ही किया मैंने। अब मैं यहाँ एक्टिव को पकड़ूंगा, कैसे पकड़ूंगा? डॉट एक्टिव, है ना, बात समझ आ रही है? पकड़ूंगा डॉट एक्टिव से। मैं इसमें कहूँगा विजिबिलिटी हिडन। अगर मैं कहूँगा विजिबिलिटी इसकी क्या रखो? हिडन, तो ये दिखेगा क्या? गया गायब हो गया ना, मगर गायब नहीं हो गया। अगर डिस्प्ले नन रखेंगे उसका मतलब है कि हमने इसको दिखाना ही नहीं है, तो डिस्प्ले नन नहीं करना है। इसकी विजिबिलिटी ये है वहाँ पे, मगर हिडन हो गया फिलहाल। जब ये हिडन हो गया तो मुझे अपना ये स्क्रीन दिख रहा है। और अगर मैंने इसको बंद कर दिया, ये जो क्लास है इसको बंद कर दिया, इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको सिखा रहा हूँ, आप ध्यान दें, कमांड// इसको बंद कर दिया तो वो दिखेगा। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो काम है हाइड करना, अभी तो मैं सीधे कोड में कर रहा हूँ, कि मैं कह रहा हूँ कि कोड खोलो, यानी कि ये एक्टिव खोलो, तो भाई साहब हाइड हो गया। और एक्टिव को जो है रखो बंद, ये विजिबिलिटी वाला क्लास ही ख़त्म कर दो तो आ जाएगा। क्यों? कुल मिला के मैं क्या बोल रहा हूँ कि क्लास हटा दो, क्लास, जैसे मैंने ये बंद किया, मैंने क्लास हटा दो, तो आपका वीडियो हाइड नहीं, वीडियो जो है वो आएगा, अगर ये क्लास ख़त्म है। अगर ये क्लास ख़त्म नहीं है, अगर ये क्लास क्यों है? क्योंकि एक्टिव इज़ ए क्लास, इट्स ए नेम, इट्स ए क्लास नेम ऑफ द सेक्शन। अगर ये एक्टिव क्लास नेम है तो एक काम करो, देखिए अब मैं इफ एल्स बोल रहा हूँ, आई एम सेइंग इफ एल्स, अंडरस्टूड दिस, understand, even though I don't have to teach JavaScript right now, but I want to give you taste of JavaScript and I will make you understand it, but you have to be with me properly. I will make you understand JavaScript today, which हालांकि हमें JavaScript एज अ लैंग्वेज लेना है, पूरी लैंग्वेज पढ़नी है इनसाइड आउट, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे ये सिखा रहा हूँ कि भाई साहब मेरा लॉजिक आ रहा है यहाँ पे। मैं कह रहा हूँ कि अब मैं यहाँ पे देखिए मैं क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ सर कि अगर मेरा ये एक्टिव क्लास है, डॉट एक्टिव क्लास अगर मेरे पास है, तो वीडियो हिडन होने वाला है, क्योंकि उसमें हिडन करेगा उसको विजिबिलिटी, ठीक है ना। अगर ये एक्टिव नहीं है तो हिडन तो होगा ही नहीं, जब ये क्लास ही नहीं है तो ये हाथ में, यानी कि यहाँ मुझे रिमूव करना है या मुझे ये रखना है, ये क्लास एक्टिव क्लास। तो अगर एक्टिव क्लास ऐसे लिखूंगा मैं, इफ एक्टिव क्लास अगर है तो वीडियो हिडन, विजिबिलिटी उसकी क्या होगी? हिडन, तो वीडियो नहीं दिखेगा, तो वीडियो नहीं दिखेगा, तो पिक्चर पीछे वाली दिखेगी। एल्स का मतलब है कि जो एक्टिव है ये नहीं है, यानी कि मैंने एक्टिव को पहले ऐड किया, अगर एक्टिव ऐड है तो विजिबिलिटी हिडन हो जाएगी, यानी कि आपको वीडियो नहीं दिखेगा। एल्स में दिखेगा, यानी कि आपने रिमूव किया है फिर उसको, एक्टिव को,
यानी कि कुल मिला के मैं ये बहुत तरीके से ये काम कर सकता हूँ। मैंने एक तरीका आपको बता रहा हूँ कि भाई साहब आपका जो ये क्लास नेम है एक्टिव, आप सुनिए मेरी बात, आपका जो वसीम फारूक योर कैमरा शुड बी ऑन। आपका जो क्या बोल रहा हूँ मैं कि जो ये एक्टिव क्लास है, जो ये एक्टिव क्लास है, ये वाला जो मैंने यहाँ पे इसको एक्टिव क्लास नाम दिया, इसको मैं रिमूव अगर कर दूँ, जैसे मैंने इसको ऐसे रिमूव कर दिया, मैंने रिमूव कर दिया, मतलब फिजिकली मैंने रिमूव कर दिया, व्हाट विल हैपन अगर मैंने इसको रिमूव कर दिया, तो क्या ये वाला चीज़ चलेगा? क्योंकि मैंने क्लास को रिमूव कर दिया ना। तो जब मैं देखूंगा तो जब रिमूव किया वीडियो हिडन नहीं है ना। लेकिन जब मैंने ऐड कर दिया, अगर मैं इस एक्टिव क्लास को यहां पे ऐड कर दूंगा, कमांड Z, मैंने इस एक्टिव क्लास को यहां पे ऐड कर दिया, तो उससे क्या होगा? वीडियो हाइड हो जाएगा कि वीडियो का जो है उसका जो है अब मेरा ये आ जाएगा। तो मैं चाहता हूं ये चीज़ अब बटन पे हो। मैं चाहता हूं यही जो ये एक्टिव क्लास है वो रिमूव या ऐड इस बटन पे हो। यानी कि जब मैं इस बटन को क्लिक करूंगा तो मेरा वीडियो आना चाहिए। तो वो वीडियो कैसे आएगा? क्योंकि मैं एक्टिव को रिमूव करूंगा इस बटन के क्लिक करने से। जब बटन रिमूव हो जाएगा तो वीडियो आ जाएगा मेरा। और जो फिर ये क्रॉस बटन है, क्रॉस बटन करने को क्लिक करने से, क्रॉस बटन को क्लिक करने से ये एक्टिव वापस ऐड होना चाहिए। तो बटन को क्लिक करने से एक्टिव रिमूव होना चाहिए और क्रॉस को क्लिक करने से बटन एक्टिव ऐड होना चाहिए। जब एक्टिव ऐड हो जाएगा, जब एक्टिव ऐड हो जाएगा, होगा क्या एक्टिव ऐड होने से? एक्टिव ऐड हो जाएगा, ये CSS चलेगा एक्टिव का और ये विजिबिलिटी हिडन करेगा किसकी? वीडियो की। क्यों? क्योंकि एक्टिव किसका क्लास है? एक्टिव इज द वीडियो कंटेनर। वो वीडियो कंटेनर ही खत्म हो जाएगा। जब वीडियो कंटेनर ही खत्म होगा, हिडन हो जाएगा, ना आपका वीडियो दिखेगा ना आपका आइकॉन दिखेगा। कुल मिला के समझ आई बात? बस मैं आमिर, आप मुझे बताओ क्या करना चाह रहा हूं मैं? सर पहले हमें एक्टिव क्लास को ऐड करना है हाँ यूजिंग द क्रॉस बटन, ठीक है? Exactly. एंड वी हैव टू रिमूव इट यूजिंग द बटन। क्योंकि मैं यहाँ पे जब कह रहा हूँ शो रमदान, दैट इज वीडियो, शो वीडियो एक्चुअली आई वांट टू शो। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू इज आई एम ट्राइंग टू रिमूव दिस एक्टिव। Okay, I will remove this active button, active class with the click of the show, and with the cross button, that is I don't want to watch video now. I don't want to watch video. I want to go back. I want to cross it. The pop-up window बंद होना चाहिए. तो then that means I have to add active back. Right? यही दो काम करने हैं. Simple. Right? इसको हम जावास्क्रिप्ट में काम करेंगे. ये काम हम किस में करेंगे? जावास्क्रिप्ट में. क्योंकि ये लॉजिक ना आपका HTML कर सकता है ना आपका CSS कर सकता है, ये कोई लैंग्वेज ही कर सकती है, बिकॉज इट्स अ लॉजिक। व्हेनेवर देयर इज अ लॉजिक, अ बिहेवियर दैट आप क्लिक होने से कुछ हो रहा है, क्रॉस को क्लिक करने से कुछ हो रहा है, तो आप जो आपका जो CSS और जो आपका ये है, ये सिर्फ इस टेक्स्ट को बड़ा छोटा इसका लुक एंड फील कर सकता है CSS, लेकिन वो इसका बिहेवियर नहीं ला सकता। बिहेवियर कौन लाएगा? जावास्क्रिप्ट। तो जावास्क्रिप्ट के लिए मैं क्या करूँगा काम? यहाँ पे मैं यहाँ पे एक फोल्डर बनाएंगे हम सारे, बनाओ मेरे साथ। तो बाहर जाएंगे पहले, इसमें यहाँ पे क्लिक करेंगे बाहर आप, और यहाँ पे एक फोल्डर बनाओ, इसका नाम रखो स्क्रिप्ट, ठीक है? और स्क्रिप्ट के अंदर स्क्रिप्ट को क्लिक करो, ब्लू इशू शेड आना चाहिए स्क्रिप्ट को। फिर नई फाइल बनाओ, इसको लिखो script.js, जावास्क्रिप्ट, ठीक है? और जे आपका जो VS कोड है उसने लगाया यहाँ से JS, यानी कि जावास्क्रिप्ट को समझ आया। तो पहला काम जो मैं काम करूंगा जावास्क्रिप्ट के अंदर, मैं 3 वेरिएबल्स बनाऊंगा। एक मुझे चाहिए बटन, हैंडल टू द बटन, ठीक है? ओके, दूसरा मुझे चाहिए हैंडल टू द क्रॉस बटन, जो क्रॉस ऊपर है उसको मुझे चाहिए, मुझे उसके ऊपर हैंडल चाहिए ताकि मैं उस पर काम करूं। और तीसरा वीडियो कंटेनर, क्योंकि वीडियो कंटेनर शो मुझे हाइड करना है। एक ये शो बटन, पहले मुझे इसको पकड़ना है क्योंकि ये डॉम करता है हमारा, ओके, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। हम डिटेल में पढ़ेंगे बाद में थ्योरीज, क्योंकि जो भी हम कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं उसको हम रिफाइन करेंगे। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा हर एक चीज़ में जब आप थोड़ा सा यूज़ केसेस करोगे तो आपको भी एक इंटरेस्ट बढ़ेगी इसमें और आपकी प्रैक्टिस होती जाएगी। और जब हम फिर एक्चुअली जावास्क्रिप्ट पे आएंगे या एक्चुअली CSS पे आ जाएंगे, उस वक्त आपके सीमेंट हो जाएंगे कॉन्सेप्ट्स, ठीक है?
तो इसमें इसमें ये रिविजन्स लग जाते हैं फिर। तो इस तरह पढ़ने से मेरी एक्सपीरियंस है दैट यू विल लर्न बेटर। अभी आपको 50% कोई चीज़ समझ आ रही है जावास्क्रिप्ट की या CSS की, लेकिन जब हम वो पढ़ेंगे उस वक्त वो कॉन्सेप्ट, उस वक्त यू आर ऑलरेडी प्रिपेयर फॉर दैट एंड यू विल बी 100% श्योर। सो पहला काम मुझे करना है कि इस ये शो रमदान बटन है, मुझे चाहिए ये इसके ऊपर जावास्क्रिप्ट को इसके ऊपर हैंडल चाहिए, ठीक है। इससे पहले मैं ये काम करूँ, पहले मैं देखूंगा कि मेरा जावास्क्रिप्ट जो है, आई वांट टू लिंक दिस जावास्क्रिप्ट विद माय HTML फाइल। जैसे मैंने CSS को लिंक किया यहाँ पे, आप देखें मैंने CSS को यहाँ पे लिंक किया था लिंक टैग से, लिंक ये वाला टैग हमने किया कि CSS मेरा लिंक होना चाहिए HTML के साथ। इसी तरीके से जावास्क्रिप्ट लिंक होना चाहिए आपके HTML के साथ, लेकिन वो हम टॉप पे नहीं करते, वो हम बॉटम पे करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा जावास्क्रिप्ट लगता है, हमारा CSS लगता है कि जब अभी HTML बना भी नहीं, क्योंकि हमें CSS जो है वो बनाने के वक्त लगता है। अब आपका रूम बन गया, अब आपने रूम्स में वॉशरूम्स में नलकी लगाए, जब नलकी लगाए उसके बाद अब हॉट वाटर उसको ये फंक्शनैलिटी दे रहे हो कि पानी आ रहा है वगैरह, तो यानी कि जावास्क्रिप्ट तब लगेगा जब पेज बना हो, ठीक है ना। इसलिए हम क्या करते हैं, जावास्क्रिप्ट हमेशा बॉडी जो टैग क्लोजिंग टैग है वहाँ पे लगाते हैं, ताकि पहले हम HTML को बनने तो दो, तब जाके तो जावास्क्रिप्ट लगेगा ना। बिहेवियर का पड़ी बुझ दपान मेरा जो स्केल्टन है वो HTML है, लेकिन जो ये स्किन है, ये जो दाढ़ी है, जो ये है वगैरह है, नाक का जो स्किन है वगैरह, ये हो गया मेरा CSS। लेकिन अब नाक स्मेल कर रही है, ये जावास्क्रिप्ट है। तो जावास्क्रिप्ट कब होगा? जब नाक बनी होगी ना, गोडेमा लगा बस CSS या जावास्क्रिप्ट ये नसी आए मुश्क से, इसलिए गोड दपान गोड दित पेजेस बनाव पत लगा जावास्क्रिप्ट कित कन लगा। वी हैव सिंपली द स्क्रिप्ट टैग, वी हैव व्हाट, तो तीसरा वाला यहाँ पे SC मैंने लिखा स्क्रिप्ट सोर्स, और स्क्रिप्ट सोर्स में मैंने यहाँ पे स्क्रिप्ट फोल्डर बनाया है, तो मैं कहूँगा स्क्रिप्ट फोल्डर, उसके अंदर मेरा ये है, तो ये हो गया लिंक। अगर मुझे टेस्ट करना है कि ये गोवा लिंक न गोवा लिंक बकर गोड स्टार्टस कम इसमें स्क्रिप्ट फाइल है ना, अत लिख बह सिंपल अलर्ट, बह लिख अलर्ट बॉक्स एंड बह लिख ये हाई फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। मतलब अगर ये लिंक गो तेल गई हाई चालू, यानी कि अगर बह पन्निस पेजस पे ये अत आव क्या अलर्ट बॉक्स आना हाई आ गया ना, ऊपर दिख रहा है। स्क्रीन शेयर बंद हो गया। ओ स्क्रीन शेयर ही बंद हो गया, एंटायर स्क्रीन। एंटायर स्क्रीन सेकंड शेयर, तो यहाँ पे हाई आ गया ना ये, यानी कि अभी मैंने पेज जो है, जब मैं जाऊँगा इधर मैंने अलर्ट हाई किया, जो ही मैं जाऊँगा इस पेज पे और इसे रिफ़्रेश अगर मैं करूँगा, इस पेज को मैं रिफ़्रेश करूँगा, सो ये आपका जावास्क्रिप्ट चल रहा है, हाई बोल रहा है ना यहाँ पे। सो ये अलर्ट बॉक्स आ गया, ये अलर्ट बॉक्सेस वगैरह हम बाद में बात करेंगे इसकी, फिलहाल तो हमारे पास ये आ गया, ठीक है जी, समझ में आ गया। यानी कि मेरा जावास्क्रिप्ट लिंक हो गया। अब मैं चाहता हूँ कि जावास्क्रिप्ट जो मेरा यहाँ पर है मुझे अलर्ट नहीं करना है, मुझे चाहिए क्या, पहले मैं इसको बंद ही कर दूंगा क्योंकि ये बीच में आ गया मेरे को पहले ये इसका हैंडल चाहिए ताकि मैं इस पर काम कर सकूँ। जो आपका जावास्क्रिप्ट है तमिस दपान नश तनाव मुश्क गोड ना मैं नश तुंद हैंडल ताकि जावास्क्रिप्ट कर नश पे काम, इथे पे कर जावास्क्रिप्ट ये बटनस पे काम, क्रॉस बटन वीडियोस मज तथ पे काम, बेस मे मोन वीडियो बटन मे वीडियो कंटेनर तथ पे काम, इसलिए गसन मे 3 हैंडल मे क्या गसन आसन। सो आई विल यूज कॉन्स्टेंट्स, आई विल यूज कॉन्स्टेंट, आई विल यूज BTN बटन, ठीक है, यह रटन मे बनो वेरिएबल BTN, मे बनो वेरिएबल BTN यथ मज बह त्राव हु बटन एड्रेस, यथ मज बह त्राव इस बटन ना HTML पे, HTML में जो मेरा बटन है तमिक एड्रेस, सह कित रट बह एड्रेस, बह दपस बह डॉक्यूमेंट चोन बह करो पे डिटेल्स में डिस्कस, मगर ये गि समझ बह वन क्या मे डॉक्यूमेंट डॉट बह दप गेट एलिमेंट बाय ID, कर चीज रट ID, ID अगर थोमुत या क्लास नेम थोमुत, ठीक है, रटन तम नफर, ठीक है, या वन बह क्वेरी सिलेक्टर, क्या वन बह क्वेरी सिलेक्टर रट चाहे ID चाहे क्लास नेम यह रट दोनवनी, यानी कि बस दपान बाया कर चीज कि मे रटन की बटन ना, मे रटन की बटन
बटन का चेक ये बटन का चेक क्या अत क्या क्लास नेम नाव BTN अत क्या क्लास नेम नाव BTN बुस दपान जावा स्क्रिप्टस मज मैं इसको जावा स्क्रिप्ट में क्या बोल रहा हूँ कि भाई साहब तो एक काम कर जो डॉक्यूमेंट आपका है ना कि डॉक्यूमेंट मीन्स को जो HTML का डॉक्यूमेंट जो आपका है उसमें तू सिलेक्ट कर बंदे को जिसका नाम है BTN जिसका नाम क्या है BTN तो वो बंदा वो चीज वो एलिमेंट जावास्क्रिप्ट का जिसका नाम BTN है वो उसका एड्रेस अब इस BTN में तो इसका नाम मैं रखूंगा डिफरेंट ऐसे BTN 1 अब इस BTN 1 में चला जाएगा या मैं BTN ही नाम रखूंगा या B रखूंगा नाम इसका मैं रखूंगा BT नाम या BTN नहीं रखूंगा क्या फर्क पड़ता है जो ये BTN अब इस जावास्क्रिप्ट के अंदर है ठीक है अब आप कंफ्यूज हो गए इस BTN से मैं इसका नाम रखूंगा 1 जो BTN 1 है इसमें अब एड्रेस है इट इज अ हैंडल टू द एक्चुअल बटन ऑन द डॉक्यूमेंट HTML डॉक्यूमेंट अब मुझे लड़कियों में से कोई बताए मुझे इसी तरीके से सिलेक्ट करना है ताकि मैं उसका एड्रेस पकड़ सकूं किसका जो क्रॉस बटन है तो क्रॉस बटन का कुछ नाम दिया है मैंने पहले क्रॉस बटन का नाम देख कुछ हाँ दिया ना मैंने क्रॉस अभी उसका अभी दिया ना मैंने कुछ देर पहले क्रॉस अब मुझे इसको पकड़ना है यूजिंग HTML कैसे पकड़ूंगा यूजिंग जावास्क्रिप्ट सो आई विल यूज सम वेरिएबल आई विल क्रिएट सम वेरिएबल जैसे ना सी में आप वेरिएबल करते हैं कॉन्स्ट से आई विल कॉल इट क्लोज हाँ आई विल कॉल इट क्लोज इज इक्वल कैसे कहूँगा डॉक्यूमेंट शाबाश डॉट क्वेरी सिलेक्टर ओके अब पेरेंसिस में क्या लिखूंगा डबल कोट्स में जो उसका नाम है क्रॉस तीसरा बताया आप तीसरा मुझे किसको करना है वीडियो कंटेनर को आई विल से कॉन्स्ट विड कंटेनर हाँ विड कॉन लिखूंगा मैं विड कॉन ओके वीडियो कंटेनर इज इक्वल क्या कहूँगा बताओ कोई बताओ मुझे क्या लिखूंगा मैं डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर उसका नाम क्या रखा था हमने मेन नहीं वीडियो कंटेनर वीडियो कंटेनर उसका नाम हमने वीडियो कंटेनर रखा था है ना वीडियो कंटेनर अब क्या होगा इस चीज़ से क्या होगा बता मुझे इन तीनों से मैंने क्या किया मैंने 3 वेरिएबल्स खड़े किए यथा नाउ विड इवेंट्स BTN व क्लोज द विड यम 3 वेरिएबल लिंक करान सानिस फॉर्म किस HTML डॉक्यूमेंट तम किस बटनस से BTN करान युस क्लोज आइकॉन ना तस यह क्लोज करान तो यह विड करान कमिस यह करान वीडियोस ठीक है वन मे वुचन अख चीज मे गो लिंक युस मे यह BTN युस मे यह BTN युस यह बटन अत सो जावास्क्रिप्ट BTN लिंक अत सो गो जावास्क्रिप्ट यह BTN लिंक गो ना कहाँ रखा मैंने जावास्क्रिप्ट अत सो गो यह BTN 1 लिंक मगर मैं कर काम करें अत पे मुझे कब करना है ये काम इस BTN 1 पे मुझे कब काम करना है जब इसको क्लिक करेंगे इसे हम बोलते हैं इवेंट लिसनिंग इसे हम क्या बोलते हैं इवेंट लिसनिंग व्हाट आर वी सेइंग टू इट वी कॉल इट इवेंट लिसनिंग यानी कि मे डबल क्लिकस पे काम करें मे हावरस पे काम करें मे सिंगल क्लिकस पे काम करें मे कत पे काम करें सो दिस इज कॉल्ड एज इवेंट लिसनिंग सो अम खा इवेंट लिसनर क्या इसलिए वन मैं अमिस अगर मैं दप BTN 1 यह कुछ गो तेल वह जावास्क्रिप्ट अगर BTN 1 हु इज दिस ओपन अप द माइक एंड टॉक एवरीबडी इट इज बटन 1 बहुत अमिस यहां कर एड क्या कर एड इवेंट लिसनर बस कर चीज कर इवेंट लिसनर एड क्या कर कुछ इवेंट लिसनर यह मार्स मर्जी गई क्लिक चाहे डबल क्लिक कर क्या कर क्लिक ठीक है गो अस कोर अमिस इवेंट लिसनर एड क्लिक यानी कि बाया अगर क्लिक अमिस पे गो यासिर रसूल इज नॉन कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यासिर रसूल अगर दपान कोर अमिस कशर पे करो कत करो कशर सोद लॉजिक व्योठ लॉजिक या कंप्यूटर साइंस जरूरत कहें बहुत दपान मे कोर बटनस पे इवेंट लिसनर एड क्लिक यानी कि मे दोप जावास्क्रिप्टस दी कान अमिस बटनस ठीक है कान दी क्या मूजूब अत गो बना फॉर एग्जाम्पल मे दरवाज
मे थो आमिर तुल मे दोपस आमिर आज कर अख चीज कम थ कन दरवाजस कुन तो चा कर कन क्या दे ठुक गसा नॉक गसा अगर नॉक गो तेल क्या आमिरस कर तेल आमिरस क्या कम कर तेल आमिरस कर कम गो तेल जो चीज वन अस युत योत वन कि ठुक गो तेल ना आमिर मे क्या कर ठुक मे क्या कर कत समझ मे लोग आमिर फिलहाल इवेंट लिसनर दोपस कर कन थी दरवाजस कुन ठीक यह गो इवेंट लिसनिंग वो ब्यूटी लिसन करने या ठुक गोवा ना गोवा मगर अत ने मकसद यह तो अमिस बे क्या वन कि ऐ क्या तेल कर ठुक कर पे बह दस आज यह पार्सल वो अमे पोसे ऐ कर इत डू यू अंडरस्टैंड आर यू गेटिंग पॉइंट सो यानी कि अगर मैंने इवेंट लिसनर लगाया क्लिक देन व्हाट शुड आई डू नेक्स्ट आई शुड ऑल्सो टेल हिम व्हाट टू डू आई शुड ऑल्सो टेल हिम व्हाट टू डू सो दैट मीन्स कि हम ऐसे करते हैं कंप्यूटर साइंस में ये जो व्हाट टू डू है ना वो हम ऐसे करते हैं हमारा ये कहाँ गया वो बंद ही कर इसमें वन नोट 1 second आई विल ओपन द वन नोट अच्छा ये नहीं तुम कहीं ये तुमने ऐसी करो बेयर विद मी दिस थिंग सो दैट वी अंडरस्टैंड इट बट नो प्रॉब्लम अगर किसी को समझ नहीं आता दैट्स नॉट एन इशू बिकॉज वी आर गोइंग टू रीड जावास्क्रिप्ट इनसाइड आउट लेटर ऑन ठीक है मगर थोड़ा बहुत यी समझ वस बस दपान कि करान लिसन टू मी व्हाट आई एम सेइंग कि भाई साहब अबे लिखना यार अब अच्छा टेक्स्ट मोड लिख क्यों नहीं रहा हाँ बस दपान अमिस कि भाई साहब चा कर इवेंट लिसन क्लिक दैट मीन्स युथु क्लिक गि तेल कर तेल कर बॉक्स में लिखमुत ना मैं यह कर ठीक है इस बॉक्सस में लिखित यमिस ना क्लिक पे कर इट इज कॉल्ड एज अ फंक्शन इट इज कॉल्ड एज व्हाट फंक्शन कि दैट मीन्स दिस फंक्शन हैज सम बाउंड्रीज अत पन नाव अत फंक्शन पन नाव बेस आम पन जॉब क्या कर यानी कि आम प्रोग्राम लैंग्वेज में आ फंक्शन तथा कह नाव फॉर एग्जाम्पल नाव रिमूव यह रिमूव अ फंक्शन ठीक अत मज कोड लगित कि मे क्या रिमूव कर अत कर बह क्लिकस पे कर रिमूव बह दमिस क्लिक गि चा कर यह रिमूव कर अमिस फंक्शन आलव ठीक वो यम चीज़ दोयो तरीको हेको लिखित दोयो तरीको क्या हेको लिखित कि बहुत दपान कि चा कर एड इवेंट लिसनर एडा कर इवेंट लिसनर कुछ इवेंट लिसनर क्लिक गई अख चीज़ दम चीज़ क्या मे वन कि क्लिक ऐ वोन कुछ इवेंट लिसन डबल क्लिक छा माउस हावर छा सिंगल क्लिक छा क्या छा कि बाया युथी अमिस बटनस BTN 1 तम सा लग इवेंट लिसनर वो कौन सा है क्लिक क्लिक लगाना आप लेकिन क्लिक के बाद क्या काम करेगा भाई वो रिमूव को आप जो रिमूव फंक्शन है उसको जो रिमूव फंक्शन जो है ना उसको कॉल करो उसको अब जो रिमूव फंक्शन है वो मेरे पास यहाँ पर है रिमूव फंक्शन कहीं पे मैं लिखूंगा उसको कॉल हो जाएगी और ये काम होगा ठीक तो यानी कि रिमूव फंक्शन अब इसको कॉल करेगी और ये काम हो जाएगा और यही बात मैं दूसरे तरीके से लिख सकता हूँ मैं कहूँगा कि भाई साहब जो BTN 1 है ठीक है उसको ऐड इवेंट लिसनर आप करो आपको इसको ऐड इवेंट लिसनर करो कौन सा ऐड इवेंट लिसनर करोगे आप इसको भाई साहब क्लिक अब क्लिक पे क्या काम करोगे उस फंक्शन का नाम लिखना पड़ेगा या दूसरा तरीका है कि आप कोड को बचाने के लिए आप फंक्शन का नाम मत लिखो कि रिमूव फिर रिमूव के ऊपर जाओ ठीक है इससे आपका लंबा चौड़ा पड़ जाए एक तो रिमूव लिखना पड़ेगा और फिर उस रिमूव के ऊपर जाना पड़ेगा आपको इससे बेहतर है कि जो कोड आपने यहाँ पे लिखा है ये वही कोड आप डायरेक्ट यहाँ पे लिखो तो उसका मतलब है कि मैं बिना नाम के एक फंक्शन यहीं पे लिखूंगा बिना नाम के मैं फंक्शन वहीं पे लिखूंगा यानी कि डबल क्लिक जब मैं क्लिक करूंगा डबल कोड क्लोज करूंगा कामा कहूँगा उसके बाद कहूँगा मैं भाई साहब फंक्शन करो और एरो ऑपरेटर दूंगा ऐसे और फिर ब्रेस दूंगा उस ब्रेस के अंदर वो सारा कोड उसको बताऊंगा क्या करना चाहिए उसके बाद जो ये वाला ब्रेस है ना ये मैं क्लोज करूंगा यहाँ पे और टर्मिनेटर यानी कि जो मैं फंक्शन नाम और फंक्शन फिर कहीं और लिख रहा हूँ ये दोनों कामों को मिला रहा हूँ मैं चूंकि फंक्शन कहीं और पे थी तो मुझे नाम जरूरी लिखना था और नाम को बताना था अब मैं जब मैं वो काम ही बता रहा हूँ उधर ही तो मुझे फंक्शन का नाम लिखने की ज़रूरत नहीं है और इस फंक्शन को हम जावास्क्रिप्ट में एनोनिमस फंक्शन बोलते हैं
एनोनमस फंक्शन, एनोनमस फंक्शन हो गया बिना नाम के, अनामिका कशर पे अनामिका यानी कि बिना नाम की फंक्शन। यानी कि मैं दोनों तरीके कर सकता हूँ, लेकिन बेटर है कि हम कोड को बचाने के लिए बेस्ट प्रैक्टिसेस करें। कि मैं कह रहा हूँ भाई साहब सिंपल है कि आप क्या करना, जो बटन 1 है, क्योंकि बटन 1 के ऊपर मेरे हैंडल आ गया जावास्क्रिप्ट में। कैसे? मैंने कहा जो डॉक्यूमेंट के ऊपर है, जो जिसका भी क्लास नेम btn है उसको पकड़ो आप, और उसका एड्रेस btn में आ जाएगा। सो अब btn एज गुड एज btn है, ठीक है। तो अब उस btn को आप क्या करोगे काम, उसको ऐड करो इवेंट लिस्नर, कौन सा, क्लिक, और फिर कामा करके मैं क्या कहूँगा कि भाई तेरे को ये फंक्शन करनी है लेकिन एनोनमस तरीके से कर। अब मैं इसको एंटर मारूंगा यहाँ पे, ये जो मैंने ये पेरेंसेस है ना, इसको नीचे लिया मैं, और जो ये एनोनमस फंक्शन है उसको मैं ब्रेस में लिखूंगा, इस ब्रेस में अपनी फंक्शन लिखूंगा। तो मुझे क्या लिखना चाहिए इसमें, बताओ कोई? इवेंट करना है ना ऐड सर। रिमूव, मुझे वो एक्टिव जो है वो रिमूव करना है, वो करना है ना रिमूव, क्लिक पे रिमूव करना है, क्लिक पे क्या करना है, रिमूव। लेकिन किसको रिमूव करना है मुझे? एक्टिव को। वो एक्टिव जो है वो किसका नाम है, वो जो एक्टिव है वो किसका नाम है, इसका वीडियो कंटेनर का, है ना। वो एक्टिव नाम है वीडियो कंटेनर का। तो क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे, कहाँ गया ये? हाँ ये ब्रेसेस के अंदर, हाँ ब्रेसेस के अंदर, एब्सोल्युटली। उसने प्रिटियर कराना वापस, ये प्रिटी बना हुआ। सो मैं अब वीडियो कंटेनर जो है उसको मैंने किस में पकड़ा हुआ है यहाँ पे? विड में पकड़ा है। वेरी गुड। तो क्या लिखूंगा बताओ मुझे? मैं लिखूंगा विड, हाँ, विद डॉट जो उसका क्लास लिस्ट है, जो उसका क्या है क्लास लिस्ट में, उसके जितने भी क्लास नेम्स आपने दिए हैं ना, विड मीन्स वीडियो कंटेनर। वीडियो कंटेनर जो है वो ये है भाई साहब, देखो वीडियो कंटेनर ये है, उसमें क्लास नेम का लिस्ट क्या क्या है, उसमें 2 चीज़ें आपने दी हैं। फ़र्ज़ कीजिए मैंने यहाँ पे उसका जुनैद भी नाम दिया है क्लास नेम, तो उसके क्लास लिस्ट में 3 चीज़ें आ जाएंगी। उसके क्लास लिस्ट में आएगा वीडियो कंटेनर, एक्टिव एंड जुनैद, है ना। अब फिलहाल 2 ही चीज़ें हैं, तो मैं उसके वीडियो जो उसका क्लास लिस्ट है उसमें आएगा वीडियो कंटेनर और एक्टिव। लेकिन मैं क्या चाहता हूँ, जो उसका वीड डॉट जो क्लास लिस्ट है, क्लास लिस्ट है, उसमें क्या करूँगा मैं, रिमूव या ऐड? भाई रिमूव कर। किसको रिमूव कर? एक्टिव को। जो उसमें जो एक्टिव बैठा है ना उसको रिमूव कर। तो ये एज इफ ऐसा हो जाएगा कि जैसे वो है ही नहीं वहाँ पे, ठीक है। जब वो है ही नहीं तो हाइड होगा नहीं, ठीक है। तो यानी कि जो ही आपने बटन को क्लिक किया, यानी कि अगर हम यहाँ जाएंगे अभी, जो ही मैंने बटन को क्लिक किया, ये तो कुछ हो ही नहीं रहा। हमने क्या किया, गड़बड़ किया कुछ। हमने क्या कहा, विड डॉट क्लास रिमूव, मैंने वो क्या, 1 मिनट पहले मैं वो देखूंगा वहाँ पे, यहाँ पे लिखा है मैंने एक्टिव। सर हाँ सर क्वेरी सिलेक्टर पे आपने डॉट नहीं डाला क्लासेस में। कहाँ पे? डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर डॉट btn ऊपर लाइन नंबर 1। यस वेरी गुड, थैंक यू। यस क्लास नेम का, बट btn नहीं लिखा मैंने। बटन यस थैंक यू। आई हैव टू से जो मेरा क्लास नेम है ना उसको बताना पड़ेगा ना, ये क्लास है। यस दैट वाज द पॉइंट, थैंक यू। अब मैं जब इसको क्लिक करता हूँ तो वो रिमूव हो गया। जो एक्टिव जो उसका क्लास नेम एक्टिव था वो जब रिमूव हो गया, जब एक्टिव रिमूव हो गया तो हाइड तो होगा ही नहीं, है ना। लेकिन ये काम नहीं करेगा अभी हमारा, क्यों? क्योंकि इस पे हमने काम नहीं किया। अब इसी तरीके से हमें काम करना है किस पे, बताओ? क्रॉस पे। सो आई से क्रॉस लिखा मैंने या क्लोज लिखा मैंने क्लोज लिखा है ना, क्लोज डॉट ऐड इवेंट लिस्नर। अब अगर इसके ऊपर क्लिक होता है, अब अगर इसके ऊपर क्या होता है, क्लिक, किसके ऊपर, क्लोज बटन पे, अगर उस पर क्लिक होता है, ठीक है ना। सो मैं क्या कहूँगा उसको, भाई तू एक एनोनिमस फंक्शन करना, दूसरा कामा लगा के आप एक एनोनिमस फंक्शन लगाना यहाँ पे, ठीक है ना। और यहाँ पे टर्मिनेटर अपना, आप एक एनोनिमस फंक्शन लगाना। उसमें मैं क्या कहूँगा, जो मेरा वीडियो कंटेनर है उसका नाम क्या है, विड डॉट, हाँ जी अभी जो किया ना, जो ऊपर किया, ये जो ये है, हाँ विद डॉट क्लास, उसके जो क्लास लिस्ट है उस डॉट ऐड करो, उसमें ऐड करो कौन, किसको, एक्टिव को। तो एक्टिव वापस आ जाएगा ना, तो एक्टिव आ गया वापस,
हाँ जी, ठीक है। तो जब मैं ये करूँगा, अब जब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो वो जब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो वो ख़त्म हो रहा है। कौन जो इसका हिडन हमने रखा था यूजिंग एक्टिव, वो ख़त्म हो गया। तो ये हाइड नहीं हो रहा बल्कि ऊपर आ रहा है। और जो बॉक्स इसके हमने बहुत बड़ा रखा वो ब्लैक कलर का, उसने वो हाइड कर दिया सारा। तो हमें लग रहा है कि वीडियो आ रहा है, ठीक है, सारा आ गया आराम से। इसको मैक्सिमाइज़ भी कर सकते हैं, इसको मिनिमाइज, जो अपने कंट्रोल्स वो सारे वो चीज़ें हैं। और जो ही मैं क्रॉस पे क्लिक करूँगा और वो लिस्ट में वापस आ जाएगा, क्लास लिस्ट में एक्टिव वापस आ जाएगा। तो वो हाइड हो जाएगा, वीडियो हाइड हो जाएगा। अब बोले ठीक है, समझ आ गया? यस यस सर। परफेक्ट। परफेक्ट। हालांकि अभी हमारा अगर आप इस सर yes, ये जो एनोनिमस है ना, अगर इसमें आप पैरामीटर्स भी पास करने होंगे तो हाँ, वो हमें वहीं पर मेंशन करने हैं। एग्जैक्टली। लेकिन अब मसला ये है कि एनोनिमस जो आपका है उसमें आप कॉल ही नहीं कर रहे हो ना कहीं पे। यस सर, वही है ना मसला, मतलब हाँ, कॉल नहीं हो रहा है ना। exactly, but we can have the parameters, we can have the parameters in the appearances if you want to, क्योंकि हमने empty appearances रखे हैं। We will talk about these functions and all in the when we read the JavaScript, ठीक है। ओके जो functions हमें in details पढ़ने हैं ना, functions पूरा, फिर उसमें anonymous भी आ जाएगा और उसमें सारी चीज़ें आ जाएंगी। अभी हमारा जो फ़िलहाल है, वी आर जस्ट बिगनिंग द HTML, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आपका सबका टेस्ट आए। तो अभी अगर हम यहाँ पे देखेंगे, जो मेरा ये index.html है, इसमें अगर मैं लिंक बंद कर दूँ, क्या करूँ बंद, जो CSS है उसको मैं बंद कर दूँगा, ठीक है। CSS बंद हो गया, और ये वाला भी बंद कर दूँगा, ये जो ना वो वाला वहाँ से CSS लाया था हमने, इसको भी बंद कर दूँगा मैं। और मैं जावास्क्रिप्ट भी बंद कर दूँगा, ठीक है। जावास्क्रिप्ट बंद हो गया, तो अब हमारा पेज कैसा दिख रहा है, ठीक है। एक बेसिक हमारा पेज दिख रहा है, बेसिक स्ट्रक्चर ओनली, जो हमने इसमें वीडियो और ये डाला था और ये टेक्स्ट वगैरह है ना। सो अगर हमने अपना CSS इसमें डाल दिया, कंट्रोल कमांड Z, और हमने जावास्क्रिप्ट डाल दिया, तो इसमें पूरी जान आ जाएगी। बात समझ आ रही कि नहीं? सो CSS जो हमारा है और जो हमारा जावास्क्रिप्ट है, वो CSS का लुक एंड फील देता है, और जावास्क्रिप्ट फंक्शनिंग। अब देखिए जावास्क्रिप्ट से इसकी फंक्शनिंग आ गई कि क्लिक से आपने कुछ कर दिया, अब इसके क्लिक से कुछ हो रहा है, ठीक है ना। सम लॉजिक इज गेटिंग बिहाइंड। और मैंने क्या किया, सिर्फ एक काम, छोटा सा मैंने काम कर दिया कि मैंने क्लिक से यहाँ पे जब मैंने क्लिक मारा, तो पहले मैंने जो जावास्क्रिप्ट से ये करेंगे हम, तो जावास्क्रिप्ट के लिए मैंने स्क्रिप्ट में script.js कर दिया। उसके बाद मैंने जिस चीज़ के ऊपर काम करना है पहले उसको आप पकड़ो, जिस चीज़ के ऊपर काम करना है पहले उस चीज़ को पकड़ो। उसके लिए बहुत तरीके हैं, मैं वो दिखाऊंगा बाद में आपको। चाहे आप टैग नेम से करना चाहते हो, चाहे आप क्लास नेम से ही पकड़ना चाहते हो, चाहे आप आईडी से पकड़ना चाहते हो, या चाहे आप क्वेरी सिलेक्टर। अब क्वेरी सिलेक्टर को डॉट बोलना पड़ेगा क्योंकि ये सब के लिए लगता है। तो इसको पता नहीं कि ये क्लास था कि ये आईडी था, इसको बताना पड़ेगा डॉट, जो हमने नहीं लिखा था। तो डॉट BTN, डॉट क्रॉस, डॉट वीडियो कंटेनर। तो इन तीनों को मैंने इन 3 वेरिएबल्स में डाला। अब मैं ये 3 वेरिएबल्स इस्तेमाल कर सकता हूँ यहाँ पे। तो पहले मैंने कहा कि उसके इवेंट लिसन कीजिए, और इवेंट लिसन के बाद आप फंक्शन कीजिए कि कौन सी फंक्शन आप करना चाहते हो, ठीक है। अब इससे थोड़ा फास्ट बन गया, क्योंकि मुझे वरना फंक्शन नेम लिखना था, और मैं फंक्शंस वो रिमूव यहाँ पे लिखता, वो रिमूव फंक्शन मैं यहाँ पे लिखता ऐसे, ठीक है ना। फिर वो जो कोड में यहाँ पे लिखता उसका ये सारा कोड, और यहाँ में रिमूव लिखता यहाँ पे, यानी कि इसको कॉल हो जाती। तो उसमें कॉन्टेक्स्ट स्विच हो जाता है, वो कंप्यूटर साइंस वालों को पता है। उसमें प्रोसेसिंग में प्रॉब्लम आ जाती है, जो प्रोसेसर हमारा है उसको कॉन्टेक्स्ट स्विच करना पड़ता है, देन इट हैज़ टू गो टू सम अदर प्लेस, इट हैज़ टू जंप। सो उससे प्रोसेसिंग और एफिशिएंसी वीक हो जाती है। इससे बेहतर है कि अगर आप वो वहीं पे लिखें। तो वही हमने किया, एनॉर्मस फंक्शन बना के वहीं पे लिखा, और इसमें भी वही किया हमने, ठीक है। कुल में किया क्या, हमने एक्टिव क्लास को लिस्ट से रिमूव किया या ऐड किया। तो उसके बिना पे जो यहाँ पे हमारा स्टाइल है ये एक्टिव का, ये या तो होगा ही नहीं या तो होगा। अगर होगा नहीं तो आपका वीडियो हाइड होगा नहीं, वीडियो आएगा, और अगर होगा तो वीडियो हाइड होगा, पीछे वाला दिखेगा, ठीक है। Clear? I think that's all for today. We will now meet day after tomorrow, inshallah ta'ala. Either we continue with that HTTP concepts and all, or we go for the more tags and more use cases. Okay? In the meantime, anybody having questions can put on the doubt section. Okay, ji. Allah Hafiz.